Hello everyone, welcome to my new video on the lecture series C programming. In our last video, we have discussed the history of C programming and we have seen some basic concept of C programming. In this video, we will learn how we declare variables in C programming, some conditionals like if-else, how we use comments in C programming, some header files, and loops like for, do while, and while. First of all, if we talk about how we declare variables in C programming, there is a rule for defining any variable that we can use alphabet, numbers, and character, and the only character that can be used for the creation of any variable is underscore. Other than underscore, we cannot use any character. And the alphabets, both small case and uppercase, can be used for declaring any variable, and numbers from 0 to 9 can be used. If we talk about the example, we can use all the capital letters for defining any variable. We can also use all the small case letters for defining any variable. We can also use underscore at the first, followed by the small case or uppercase letters. This one. We can also use mixture of small case and uppercase. We can also use small case, uppercase, numerical, and underscore. But we cannot use this numerical at the first position. This is wrong. We cannot use the numerical value at the very first position of variable name. We can use numerical at non first position. It means we can use it at second position, at third position, at fourth position, and so on. But we cannot use any variable name which is having numerical at the very first place of the name. Also, we cannot use any keyword, as we have seen in our last video lecture that we have 32 defined keywords in C programming. We cannot use those keywords also as a variable name, as these keywords are case sensitive, so that we can use by modifying them into some uppercase letters or so on. Then next topic is how we use comments in C programming. Comment in C programming, there are two types of comments in C programming. First one is single line comment and second one is multi-line comment. For the single line comment, we use two slash for any comment. It means we can use double slash and then we can use any comment. Hey, sorry, we can use comment. Hey, how are you? And the second type of comment is multi-line comment. For multi-line comment, there is a rule of slash star. Then any multi-line comment, this one. The difference between single line comment and multi-line comment is that this single line comment is only accessible for a single line. It means it is only accessible for hey how are you. It is not accessible for hello, the second line. And the multi-line comments mean under the scope, means this star and this slash star and star slash, all the lines which are in the scope of these two will be treated as comment by the compiler. Let's talk about some functions of C programming like main, printf, and scanf. If we talk about main, it is a function from where any program begins its execution.
It means compiler at the time of execution. At the very first step, compiler searches for the main function to start its execution. Then printf function is used to print anything on the command prompt. Then scanf is used for reading any value from the command prompt. We will see the practical implementation of all three, but first of all, if we talk about the format specifiers. The format specifier modulus d is used for integer values. Modulus f is used for the float values. Modulus c is used for the character values. Modulus s is used for the string. In C programming, we don't have any data type, predefined data type for C programming. We achieve the string using character array. We will see how to create a string in our later videos. Modulus x is used for hexadecimal values and modulus o is used for the octal values. We have some header files like stdio.h, mat.h, string.h, stdlib.h. stdio.h, which stands for standard input output, is used for basic fundamental functions like printf, scanf in C programming. Mat.h for power functions, square root. String is used for string related like strcpy, strcmp, and stdlib.h is used for dynamic memory allocation. तो अगर हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, तो सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है stdio.h, जो हमारी सबसे बेसिक हेडर फाइल है. इसके हेल्प से हम printf, scanf ऐसे फंक्शंस को यूज करते हैं. बाकी कोई भी हेडर फाइल मैंने यूज नहीं की है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें उनकी जरूरत नहीं है. लाइक स्ट्रिंग हमने इस पूरे प्रोग्राम में कहीं यूज नहीं की, या मैथ के पावर फंक्शन या sqrt फंक्शन को हमने यूज नहीं किया. उसके बाद हम करते हैं, उसके बाद सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर होगा मेन फंक्शन को देखेगा. इस मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन सेट लिखा होगा उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाएगा. फिर जो भी उसके अंदर अगर फंक्शन कॉल होगी, फंक्शन कॉल करेगा अकॉर्डिंगली. और लास्ट में जो सबसे अपने हमारे जो प्रोग्राम का स्टैक बनेगा उसमें जो सबसे लास्ट फंक्शन जो होगा वो मेन होगा, वो रिटर्न करेगा एट द लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को कि अब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली. अब हमने यहाँ कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं. सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल है a इक्वल्स टू 1. जैसे कि मैंने कहा था, हम कोई भी स्मॉल केस, अपर केस, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, या न्यूमेरिक अपने वेरिएबल के नेम के लिए. तो मैंने यहाँ पे सभी स्मॉल केस के यूज किए हैं. लाइक a, एक मेरा इंटीजर वेरिएबल है e. ये लॉन्ग इंट है. सब मीन्स जो हमारे इंटीजर की वैल्यू होती है, साइज होता है, वो 4 बाइट्स का होता है. और अगर हमें बड़े इंटीजर को स्टोर करना है तो उसके लिए हमें 8 बाइट्स के लॉन्ग इंटीजर का यूज करना पड़ेगा. सिमिलरली 4 बाइट्स में अगर हमें फ्लोट वैल्यू, मीन्स जिसके पास डेसिमल प्रिसीजन होता है, फ्लोट वैल्यू उसे यूज करना है तो हम फ्लोट को यूज करते हैं, या बड़ी प्रिसीजन वैल्यू को यूज करना है तो हम डबल का यूज करते हैं. उसके बाद हमारे कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास कैर एक डेटा टाइप है, इसका साइज होता है 1 बाइट. उसके बाद मैंने एक printf फंक्शन का यूज किया है जिसने ए ई बी सी डी सबकी वैल्यूज को प्रिंट करने का काम है. इसमें मॉडुलस डी जो कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा. मॉड एल एल डी लॉन्ग इंटीजर, मीन्स जो लॉन्ग इंटीजर है उसके लिए मॉड एल एल डी का यूज करते हैं. फ्लोट के लिए हम मॉडुलस एफ का यूज करते हैं. डबल के लिए मॉड एल एफ का यूज करते हैं. कैरेक्टर के लिए मॉड सी का यूज करते हैं. ये स्लैश एन का यूज होता है न्यू लाइन, मीन्स जब भी हमारा प्रोग्राम प्रिंट होता है तो उसे वो एक वे में प्रिंट होता जाता है. अगर हमें अगला जो अपना इंस्ट्रक्शन है उसको दूसरी लाइन पे प्रिंट करना तो हमें स्लैश लाइन लगाना, स्लैश एन का यूज करते हैं. सिमिलरली हम स्लैश टी का यूज कर सकते हैं उसमें टैब स्पेस देने के लिए. ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे. इसके बाद मैंने यूज किया है कंडीशनल्स का. सबसे पहले हमने इफ का यूज किया. अगर हमारी ए की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये वाला इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो. अदरवाइज अगर मेरी ए की वैल्यू
इक्वल्स टू 3 है तो यूज हो, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो। अदरवाइज अगर वो बड़ी भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो फिर वो इंस्ट्रक्शन प्रिंट करेगा ये हाई वाला। इफ एल्स का जो फंडा होता है वो ये होता है कि अगर इफ वाली कंडीशन चली तो उसके बाद जितने भी एल्स वाली कंडीशन है वो नहीं चलेंगी। बट अगर इफ की ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर नेक्स्ट एल्स को चेक करेगा कि ये सही ट्रू है या फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो इस इंस्ट्रक्शन को प्रिंट करके डायरेक्ट नेक्स्ट में जंप कर जाएगा, इस एल्स को नहीं चलाएगा। अदरवाइज अगर ये भी फॉल्स है तो फिर ये डायरेक्टली इस एल्स को बिना किसी कंडीशन को चेक करे इसे प्रिंट करे। अगला है हमारा फॉर लूप। लूप की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर लूप। फॉर लूप का यूज होता है, जो फॉर लूप की वर्किंग होती है वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले इंटीजर में वैल्यू को डालता है। मीन्स इंटीजर, नॉर्मली हम लूप्स के लिए इंटीजर का यूज करते हैं। सबसे पहले इंटीजर में वैल्यू को असाइन करता है। ये जब सबसे पहली बार लूप चलेगा तब असाइन करेगा वैल्यू, केवल फर्स्ट साइकिल पे। उसके बाद कभी भी वैल्यू को दोबारा वो असाइन नहीं करेगा। मीन्स जब भी हमारा पहली बार ये लूप चलेगा तो ए को वैल्यू होगी 0 असाइन। उसके बाद ये ए की वैल्यू को चेक करेगा, अगर ये 4 से छोटी है तो फिर ये आगे बढ़ेगा और ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। मीन्स ये ए की वैल्यू अभी 0 थी, इसको 1 कर देगा और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन को चलाएगा। उसके बाद फिर दोबारा आया, अब ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, फिर चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस ट्रू कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर प्रिंट करेगा। तब तक चेक करेगा जब तक ए की वैल्यू 4 से छोटी है। जैसे ही 4 हुआ, 4 इज नॉट लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, इस इंस्ट्रक्शन को नहीं चलाएगा और डायरेक्टली जंप कर जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो हमारा नेक्स्ट लूप है वो है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हम केवल कंडीशन को चेक करते हैं। मीन्स इसमें वैल्यू हमें असाइन एक्सप्लिसिटली करनी पड़ती है। व्हाइल लूप में जैसी हमारी जो एंट्री पॉइंट है व्हाइल लूप का, ये चेक करता है कंडीशन। हमने कंडीशन चेक करी ए लेस देन इक्वल टू 4, हाँ तो इंस्ट्रक्शन चलाओ। उसके अंदर हमें एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। अगर हम काउंटर वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, मीन्स ए लेस देन 4, तो हमें काउंटर चलाना पड़ेगा ए प्लस प्लस। मीन्स जब भी इसके अंदर आए तो इंक्रीमेंट हो जाए। पहली बारी में 0 थी, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। मीन्स ये लूप 4 टाइम चलेगा। जैसे ही ए की वैल्यू 4 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और डायरेक्टली जंप कर जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं हम डू व्हाइल लूप की। हमारे पास वैल्यू है ए इक्वल टू 0। अब व्हाइल और डू व्हाइल लूप में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि जब भी हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं तो ये एंट्री पॉइंट पे ही कंडीशन को चेक कर रहा था कि अगर ए से जो है ए की वैल्यू 4 से छोटी है तो लूप के अंदर एंट्री दो। बट जो हमारा डू व्हाइल लूप होता है वो पहली बार, सबसे पहली बार कोई कंडीशन चेक नहीं करी, ए इक्वल टू 0 डायरेक्ट, ए इक्वल टू 0 वो डायरेक्ट लूप के अंदर एंटर कर गया, कोई कंडीशन नहीं थी, प्रिंट कर दिया, ए इंक्रीमेंट हो गया। अब ये एग्जिट पॉइंट पर कंडीशन को चेक करता है, ए की वैल्यू 4 से छोटी है, जो ए की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, लूप के अंदर आया, प्रिंट करा लूप ए इक्वल टू 0, ए में इंक्रीमेंट कर दिया 1, वाइल यहाँ 1 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू कंडीशन, फिर दोबारा से लूप चले, फिर एंट्री पॉइंट पे प्रिंट, यहाँ 2 वैल्यू 2 होगी, फिर दोबारा एंट्री पॉइंट पे 3 वैल्यू प्रिंट हुई, अब 4। अब जैसे ही यहाँ पे वैल्यू 4 हुई, वाइल ए इक्वल टू 4 इज लेस देन 4, तो ये डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, वापस ऊपर नहीं भेजेगा, डायरेक्टली रिटर्न 0 हो जाएगा ओएस को। अब हम बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो ये हमारी आउटपुट विंडो है। सबसे पहले जो हमने इंटीजर प्रिंट किया था a, इसकी वैल्यू 1, दूसरा इंटीजर e वैल्यू 3, लॉन्ग इंटीजर था, फ्लोट b, डबल c एंड केयर c सो। उसके बाद हमने इफ एल्स में जो लूप चलाया था, सबसे पहले हमने लिखा था हेलो। इफ की कंडीशन, इफ a 4 से छोटा है, 4 से बड़ा है, बट हमारी a की वैल्यू 1 थी इसलिए वो कंडीशन फॉल्स हुई। दूसरी कंडीशन थी कि अगर a 3 के इक्वल्स है तो प्रिंट करो हेलो, वो भी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि a की वैल्यू 1 है। लास्ट में एल्स में कोई कंडीशन नहीं थी इसलिए उसने डायरेक्टली प्रिंट करा, जो एल्स के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखा था printf हाई, तो उसने प्रिंट करा हाई। उसके बाद हमने यूज किया फॉर लूप। तो फॉर लूप जब a की वैल्यू 0 थी तो प्रिंट करा, फिर a की वैल्यू 1 हुई, फिर प्रिंट करा, 2 हुई, 3 हुई, और जैसी 3 के बाद 4 हुई
लूप टर्मिनेट कर गया और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को चलाने लगा। उसके बाद हमने लूप लिखा था वाइल लूप। सबसे पहले हमारा a इक्वल्स टू 0 के लिए वाइल लूप चला, फिर 1 के लिए, 2 3 सो ऑन। फिर जैसे ही 4 हुआ वैसे ही फिर से कंडीशन फॉल्स हुई और वो लूप टर्मिनेट कर गया। सिमिलरली टू वाइल लूप a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 2 और 3 के लिए चला और लास्ट में टर्मिनेट कर गया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे लिए यही होता है कि वाइल और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। वाइल और डू वाइल का यूज कहाँ करें? डू वाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें स्टार्टिंग में एटलीस्ट वन कंडीशन, एक बार अपने लूप को एग्जीक्यूट करना ही हो, तब हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं, क्योंकि डू वाइल लूप एट द एग्जिट पॉइंट चेक्स द कंडीशन और वाइल लूप हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट या एंट्री पॉइंट पे कंडीशन को चेक करता है। तो हम वाइल लूप का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमको स्टार्टिंग से ही स्ट्रिक्टली वो कंडीशन फॉलो होना ही चाहिए। और डू वाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें पहली कंडीशन के लिए कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन ना देनी हो और पहले एग्जीक्यूशन के बाद हमें कंडीशन चेक करनी हो, हम वहां डू वाइल लूप का यूज करते हैं।